Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, बोलो सब बोलो, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, bolo, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. सब बोलो, सब बोलो. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare.
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे जयो राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन श्री राधे जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन श्री जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय गौरानिताय श्री श्री गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य हर्षोत्तर श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस्कॉन फाउंडरचार्य बीबीटी फाउंडरचार्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मनानी जी की जय। श्री श्री गौ निताय भगवान की जय। शीला प्रभुपाद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू so much coming in the class. हरे कृष्णा। थैंक यू। धन्यवाद आपका। आशीर्वाद। हरे कृष्णा। तो वो भगवद गीता का हमारा पिछली बार 3.19 हुआ था। आज हम आगे चलेंगे। भगवद गीता ही क्यों पढ़ाते हैं हम लोग? क्योंकि बोला जाता है कि भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है या ऐसी बुक है, अगर कोई इसको समझ पाए तो उसको पता चल जाएगा कि ज़िंदगी जीनी कैसी है। तो इतना आसानी से समझ में भी नहीं आती, तो उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। बट मैं आज की क्लास एक कहानी से शुरू करता हूँ, ठीक है? वो माते ही चले गए, मैं सोच रहा था उनको कहानी सुना देता मैं, 2 मिनट में चले जाते। तो वो कहानी अभी मैंने आपको सुनाई भी थी, शायद आप थे, बैठे हुए थे, नहीं थे शायद आप। वो कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है, अगर कोई इसको ज़िंदगी में उतार ले तो भक्ति उसी टाइम आ सकती है। सुनना चाहते हैं आप लोग? यस और नो?
तो वैसे तो नहीं सुनानी चाहिए, इतनी जल्दी से आ जाए भक्ति, थोड़ी स्ट्रगल तो करो थोड़ी स्ट्रगल तो करो, इतनी आसानी से क्यों आ जाए। तो सुना रहता हूँ, वो भी उसको भी इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल काम है। हरे कृष्ण माता जी। आप बड़े दिनों बाद आए? नहीं, पिछली बार तो नहीं थे आप, थे या? अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया शायद। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी कहानी ना थोड़ी देर बाद बताता हूँ, तब तक सब भक्त आ जाएंगे, क्योंकि लेट लतीफ़ भी होते हैं ना बहुत सारे भक्त। तो पहले मैं पढ़वा देता हूँ, उसके बाद कहानी सुनाऊंगा 10-15 मिनट बाद। जाना तो नहीं था आपने? तो भगवत गीता 3.19 करना है आज। 19 हो गया था ना, मैंने मैसेज भी डाला, हो गया था ना 19? हाँ, 20 करना है। प्रभु जी आज आपकी ड्यूटी लग गई है ना, दरवाजा बंद करने की। आज मैं जैसे पहली वाली क्लास में बोल रहा था, हनुमान जी ना को सेवा नहीं मिलती थी, वो ढूंढ लेते थे। तो भक्त को बड़ा चतुर होना चाहिए, सेवा ढूंढ लेनी चाहिए। और अगर भक्त सेवा ढूंढ लेते हैं ना कोई ना कोई उनको देख रहा होता है कि ये सेवा कर रहा है। जैसे मैंने प्रभु जी को देखा, कोई भी आ रहा है तो प्रभु जी दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। तो सेवा करनी चाहिए, सेवा ज़रूरी है। अभी आएंगे वैसे थोड़ा सा, क्योंकि कुछ आते रहेंगे, अभी आ रहे हैं ना, कुछ अभी आएंगे तो हल्का सा चाहे थोड़ा सा खुला रहने देना, हल्का सा ना। हाँ, बस हाँ, बस इससे लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ से ऊपर है। तो आज का श्लोक है 3.20। कर्मणा एव ही संसिद्धम असिथा जनक आदाय लोक संग्रह एव अपि संपर्शक कुत्रम अहरेसी। तो मैं वर्ड मीनिंग बोलूँगा, आप पीछे पीछे वर्ड मीनिंग बोल सकते हैं, कोई श्लोक बोला नहीं जाएगा। हाँ, आप सब आगे और आगे आ जाइए, माता जी आगे आ जाइए प्लीज़, और आगे आ जाइए। फ्रंट में बैठोगे ज़्यादा कृपा मिलेगी। यहाँ पे कौन सी क्लास वर्क थोड़ा ना जो पूछा जाएगा अभी तो कुछ भी नहीं है माता जी, अभी तो ये हॉल छोटा पड़ने वाला है, इसको डबल करेंगे हम। अरे बोल, प्रभुपाद जी की कृपा। तो पीछे पीछे वर्ड मीनिंग बोलेंगे। कर्मणा, कर्म से, एव ही निश्चय ही, संसिधिम पूर्णता में, अस्थिता स्थित, जनक आधे, जनक तथा अन्य राजा, लोक संग्रहम सामान्य लोक, एव अपि भी संपशन विचार करते हुए, कुत्रम करने के लिए, अहरसी योग्य हो। तो मतलब लिखा हुआ है, अब आप सिर्फ सुनेंगे। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अन्य सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो पहले एक बार मंगलाचरण करते हैं, फिर समझाता हूँ। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री प्रभुपाद की जय। आज मैंने छोटा भी बोला, टाइम कम था। तो बोले जनक जैसे राजाओं ने, जनक जी कौन थे? सीता माता जी के। आप आपकी आज मदर नहीं आई ना? तो जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से सिद्धि प्राप्त कर ली। सिर्फ कोई अगर नियत कर्म भी करता है ना तो भी वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जैसे मैं कल भागवतम में एक श्लोक पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि भगवान को समर्पित कर्म करने के लिए, मतलब भगवान को समर्पित सब कुछ करने के लिए सबसे पहले आपको कर्म ही करने पड़ेंगे। जब आप कर्म करोगे तब वो पता चलेगा कि भगवान को समर्पित उन कर्मों को करना कैसे है। और जब आप वो भगवान को समर्पित कर्म करने लग जाओगे तब पता चल जाएगा कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या मतलब? जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहला काम तो है अपने नियत कर्मों को करना। हमारे नियत कर्म क्या होते हैं, कौन बताएगा? बोलो। 4 वर्ण हैं, कौन कौन से? तो ये हमारे नियत कर्म है। यानी कि जिस भी हम उसमें हैं, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वाले कार्य, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय वाले कार्य, शूद्र है तो शूद्र वाले कार्य, जैसे भी हम वैश्य हैं तो बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन वाले कार्य, इसको करना है। लेकिन कैसे करना है ये अ लिटल नॉलेज है। तो वो पहले एक धूप आता था हरि दर्शन, उसमें ना एक
गीता सार लिखा हुआ आता था पर्चा, उसमें लिखा होता था क्यों तुम व्यर्थ चिंता करते हो, कौन तुम्हारा बिगाड़। तो ये अलिटल नॉलेज है, आधी अधूरी। अभी जैसे मैंने बोला अपने नियत कर्म करो, तो आप बोलोगे ठीक है वही तो कर रहे हैं हम, सुबह से लेकर शाम तक वही बिजनेस तो कर रहे हैं, इसमें भगवान कैसे मिल जाएंगे। तो वो कर्म करते वक्त क्या सोचना है कि मैं कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तो हम कर्म तो पूरा दिन करते हैं, लेकिन उसमें भगवान की प्रसन्नता मिस हो जाती है। जॉब जॉब ही करनी है, बिजनेस बिजनेस ही करना है। अब जैसे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या पढ़ते हो, जॉब करते हो, तो आज से पहले कभी ये थोड़ा सोचा होगा कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, तो जॉब कर रहे हैं तो पैसे मिलते हैं, तो पैसे कमाने के लिए जॉब करते हैं। फिर हम जॉब क्यों करते हैं कि घर गृहस्थी चला पाए, यही रीज़न होता है ना। फिर जॉब क्यों करते हैं कि बॉस को भी सेटिस्फाई करें, क्योंकि बॉस सेटिस्फाई नहीं हो। तो इसके अलावा चौथा तो व्यू ही नहीं होता हमारा। कभी हमारे दिमाग में ये थोड़ा ना आया कि भगवान आपने मुझे बुद्धि दी, उसकी वजह से मैं पढ़ लिख गया, उसकी वजह से मुझे जॉब मिली, तो जॉब में जो लक्ष्मी आ रही वो भी आपकी है, वो आपने मुझे घर गृहस्थी दे रखी है, तो मैं आपको समर्पित, वो मैं घर गृहस्थी चलाता हूँ। करा वही है जो हम कर रहे थे, यानी कि जॉब वैसी कर रहे हैं, पैसा वैसी घर गृहस्थी पे खर्च कर रहे हैं, सब कुछ वैसा कर रहे हैं, लेकिन भगवान को बीच में ले आए। इसको बोलते हैं अकर्म, भगवद गीता में बोला है। अगर वो अकर्म नहीं किया ना, तो जो कर्म कर रहे हो ना पूरा दिन, वो पाप में हो जाएगा। हाँ बिल्कुल है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हम सब लोग, खासकर भारतवासी, डेली नहाते हैं, माताएं सुबह से लेकर रात तक कुकिंग करती हैं, है ना। आपने क्या किया हुआ प्रभु जी, मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन? बैठे 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 IIM से पास आउट हो आप? MBA विच IIM? गुड। पहले साइंस थी या कॉमर्स थी आपके पास? तो आपने 10th तक की बायोलॉजी तो अच्छे से पढ़ी होगी, बाद में तो PCM पढ़ा होगा। तो जब हम कोई खाना बनाते हैं या पानी बॉईल करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस भी मर जाते होंगे उसके अंदर, है ना। नहाते वक्त भी जैसे हम पैस्चराइजेशन प्रोसेस होता है, जिसमें हम दूध को पैस्चराइज करते हैं, जो थैली आती है दूध की, अमूल की, मदर डेयरी की, उसमें दूध को पैस्चराइज करके डाला जाता है, यानी कि पहले एक्सट्रीम उबाला जाता है, फिर एक्सट्रीम ठंडा किया जाता है। क्योंकि कई बैक्टीरिया वायरस गर्म से मरते हैं, लेकिन कई बैक्टीरिया वायरस ठंड से मरते हैं। तो यानी कि हमने सारे चुन चुन के दूध को बनाते हुए जो हमने पीना है, उसमें सारे बैक्टीरिया वायरस चुन चुन के मारे। तो बैक्टीरिया वायरस भी तो लिविंग थिंग थी, उसका पाप फल नहीं मिलेगा क्या? अब सुनो, अगर हमने वो दूध उबाला, पैस्चराइज किया और हमने पी लिया, तो इसका कर्म बंधन मिलेगा हमारे को। यानी कि आपने अपने उपयोग के लिए कोई चीज़ ली, उसको एक्सप्लॉइट किया। अब हम नेचुरल रिसोर्सेज को सारों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, नहीं कर रहे? तो प्रकृति तो बदला लेती है कि नहीं लेती? आपके सामने है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो प्रकृति किसकी है? भगवान की है कि? नेचर तो भगवान ने दी है ना। तो ये तो आपको दिख रहा है, क्योंकि ये दिख रहा है आंखों से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो नहीं दिखेंगी, जैसे कि बैक्टीरिया वायरस जैसी छोटी चीज़ को भी मारा, तो उसका फल कौन देगा? क्योंकि सबने सुना है, बचपन से सबने सुना हुआ है, कोई माने ना माने लेकिन सुना हुआ है 84 लाख योनियाँ होती हैं। तो 84 लाख योनियों में भैया बैक्टीरिया भी होता है, वायरस भी होता है। तो यानी कि मेरी जो आत्मा है, मैंने इस जन्म में पाप किया था, अब मेरे को अगला जन्म पेड़ का मिला, उससे अगला जन्म बैक्टीरिया का मिला, उससे अगला जन्म वायरस का मिला। आत्मा तो उसके अंदर भी जा रही है, मैंने मार दिया, फल नहीं मिलेगा। तो लेकिन इसका फल से बच कैसे सकते हैं? हम कौन सी प्रॉब्लम डिस्कस करें, हमने तो सोल्यूशन भी देखना है। फल है कि भैया दूध का भोग भगवान को लगा दो। भगवान, ये आपकी प्रकृति है, आपको भोग लगा रहा हूँ। जैसे ही भगवान को भोग लगाया, तो उस कर्म फल के बंधन से छूट जाते हो। करना वही है, दूध पीना आपने ही है, भगवान को तो भोग लगाना है, पियोगे तो आप ही। जैसे भी पुरानी वाली पिछली क्लास को दिलीप प्रभु बैठे हैं, तो हमने यही बताया था कि भोग लगाते भोग रखते हैं, 4 रोटी रखी, लड्डू रखा, पेड़ा रखा, सब आज वापस आ जाता है ना। लेकिन दिन में अगर एक बार अगर हमने दूध का भोग लगाया, पूरे दूध में मिक्स कर दिया, बार बार भोग नहीं लगाना, पूरा दूध में मिक्स कर लिया। एक बार पानी का गिलास रख दिया, पूरे पानी में मिक्स कर दिया उस दिन के लिए। एक बार चपाती का भोग लगाया, सब्जी का, मतलब ये तो दिन में 3 बार लगाना है। तो हम अपने नियत कर्म करते हैं रहेंगे, लेकिन उसका कर्म फल से हम बच जाएंगे। तो आज
मैं आपको अभी मैंने जो स्टोरी सुनाई थी ना कर्म फल से बचने के लिए, वो जो मैंने कहा था वो 10 मिनट के बाद सुनाऊंगा। हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी आपने 5:45 निकलना ना दिल्ली प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी। वैसे ना हम क्वेश्चन आंसर्स क्लास के बाद ले लें तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो बीच में टॉपिक छूट जाएगा। चलो बोलिए 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 बोलिए। हाँ अभाव होता है बिल्कुल। प्रभु जी ये थॉट तो बहुत अच्छा है, हम लोग भी ऐसे करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने नियत कर्मों में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। जैसे कि देखो 90% लोग आज की डेट में प्राइवेट जॉब ही कर रहे हैं, टाइम की सबके पास कमी होती है। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। तो हाँ नहीं वो जैसे अब ये IMM पास आउट है तो ये बढ़िया कंपनी में लगे होंगे, तो इनके पास भी अभाव होगा, सबके पास ही आजकल। मैं उसका आंसर दे रहा हूँ प्रभु जी। कभी भी जैसे आज की पहली लाइन यही है कि जो अपने नियत कर्म को अच्छे से करता है, माता जी बंद कर देना, जो अपने नियत कर्म की डेफिनेशन ना हम बचपन से सुनते आए हैं। वो डेफिनेशन बताऊँ क्या है? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्ली टू बेड का मतलब होता है 4-5 बजे तो उठो, नॉट 6 बजे। तो क्या 5 बजे उठ के हमने आधा 1 घंटा पूजा पाठ करी? अगर वो कर रहे हैं उसके बाद आप गाड़ी में कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम सुबह वाले टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं ब्रह्म मुहूर्त को, और पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, बिकॉज वी आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स। अभी मैं एक स्टोरी सुना रहा था, पहले वो वाली स्टोरी सुनाता हूँ। एक ऋषि हुआ करते थे, उनका नाम था, मैं नाम थोड़ा शायद भूल रहा हूँ, लेकिन एक ऋषि थे लाइनू करके या लोबिनी करके, ऐसे ऋषि थे। उनकी जो उम्र थी, ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष होती है, उनके दिव्य वर्ष, यानी कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है ना, सिर्फ दिन 12 घंटे का, उसमें 4 युग परिवर्तन हो जाते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग खत्म होते हैं 12 घंटे में, और रात को भी 4 युग खत्म हो जाते हैं, यानी कि उनके 24 घंटे में 8 युग खत्म हो गए। ऐसे 100 साल, मतलब लाखों करोड़ों युग खत्म हो जाएंगे उनके। तो एक ब्रह्मा जी चले जाते थे तो उनका एक बाल गिरता था उस ऋषि का, और उनको वरदान था पूरी बॉडी के जब बाल गिरेंगे तो वो मरेंगे। तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मा चले जाएंगे ना तो वो मरेंगे। तो उनकी लाइफ आप समझ सकते हो, खरबों 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 साल, और वो दिन रात भगवान की भजन करते थे। तो उनके शिष्य कहते हैं, भगवान प्रभु आप ऐसे धूप में बारिश में बैठे रहते हो, कुटिया तो बना लो, धूप है, एक्सट्रीम बारिश है, ठंड है। कह रहे इतनी छोटी सी लाइफ है मेरी, उसमें मैं कुटिया बनाने में टाइम वेस्ट कर दूँ? वो और हम, ये रही लाइफ 60 साल की, उसमें पहले 25-30 साल हम पढ़ते हैं और बड़ी मुश्किल से 25-30 साल की नौकरी करते हैं, उसके बाद तो कुछ होने वाला नहीं है 60-65 साल के बाद या 70 साल के बाद, या भगवान ने जिसको जितनी बार 30-40 साल, उसमें हम सोचते हैं कि हम ना द बेस्ट करते हैं, द बेस्ट। उसके बाद हम मरने वाले हैं या उससे पहले भी मर सकते हैं, और हमने अपनी ज़िंदगी का मैक्सिमम जो पीक टाइम, बेस्ट टाइम था ना, वो सिर्फ उस पर निकाल दिया, जो हमारी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम था। इसका मतलब ये नहीं है काम नहीं करना, इसका मतलब ये है कि भगवान ने ज़िंदगी सिर्फ पैसा कमाने के लिए थोड़ा ना दी थी। तो अपना नियत कर्म का मतलब होता है पूजा पाठ भी, जॉब भी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी, लेकिन उनके अंदर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति का मतलब अटैचमेंट, करना है। इसका मतलब ये भी नहीं कह रहा प्यार नहीं होना चाहिए, प्यार तो होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि बच्चा गया है कॉलेज, उसके बारे में चिंतन कर रहे हो, भैया भजन कर लो, अभी टाइम है अब आपके पास। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं, नहीं तो हम कवर ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ कुछ प्रभु जी? ठीक है। अतः तो तात्पर्य देखते हैं। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे,
अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य ना थे। जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं ना, जो स्वरूप सिद्ध का मतलब होता है जो भगवान के पार्षद हैं, उनको सब कुछ मतलब भगवान से लेन देन है उनका, उनको कोई नियत कर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका तो उठना बैठना सोना जागना वो भगवान में ही है। लोगों को लगेगा ये क्या कर रहा है, लेकिन वो अंदर से उनका सब कुछ भगवान के लिए समर्पित होता है। तो जनक महाराज जी पार्षदों में एक जनक महाराज जी भी ऐसे पार्षद थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहते। आपको भगवान कृष्ण के बारे में बताऊं? भगवान कृष्ण तो भगवान है। जब मुर्गे की पहली बांग होती थी ना, तो वो उड़ जाते थे। मुर्गे की पहली बांग, आजकल तो मुर्गा ही नहीं होता, बांग क्या होनी है। मुर्गे की पहली बांग 3 साढ़े 3 बजे होती है, भगवान उड़ जाते थे। और वो क्या दिखाते थे? सुबह उठते साथ स्नान करने जाते थे, गंगा स्नान यमुना स्नान जो भी है, और अपना 2-3-4 घंटे जो उनका नियत कर्म होता था, पूजा पाठ जो भी जैसा, वो करके दिखाते थे। वो भगवान थे। उन्होंने अपने गुरु भी बनाए, संदीपनी गुरु उज्जैन के अंदर। उनको क्या ज़रूरत थी? वो ये दिखाने के लिए दुनिया को कि नियत कर्म करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप किसी भी लेवल के शुद्ध डिवोटी हो, लेकिन नियत कर्म करना चाहिए। तो भगवान सेम भगवान राम भी थे, उनके गुरु भी थे, वो भी सुबह उठ के जाते थे सरयू नदी में स्नान करने के लिए। कोई देख लो, मैं तो राम जी और कृष्ण जी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो साधु पुरुष क्या नहीं करते होंगे? प्रभुपाद जी जब 75 साल के थे तो वहाँ पे गए, कुंभ मेला में गए, उनके फॉरनर डिवोटी से 75-74 साल के थे। अब दिसंबर के टाइम, नवंबर दिसंबर का टाइम, कुंभ मेला, एक्सट्रीम ठंड, और वो भी गंगा जी का पानी, दिसंबर का टाइम, बंदा उंगली डाले तो बाहर निकाल ले। तो सारे शीशे के उठ ही नहीं रहे थे, रजाई से बाहर नहीं आ रहे थे, स्नान करने तो दूर की बात है। प्रभुपाद जी अपने नियत टाइम पे उठे 4 बजे और गंगा स्नान के लिए निकले, और गंगा जी में स्नान करे 75 साल के। तब उन शिष्यों को लगा यार ये क्या हो रहा है, फिर वो भागे। तो जब रोल मॉडल करने वाला ही नहीं करेगा ना, तो कोई पीछे करेगा ही नहीं। तो नियत कर्म करना बहुत, हम नियत कर्म की डेफिनेशन को गलत ले लेते हैं। नियत कर्म की डेफिनेशन हम पता क्या होता है? उठो बेड टी पियो, दिस इज नियत कर्म। फिर नहाओ धो टॉयलेट जाओ, फिर अखबार पढ़ो, फिर ड्यूटी पे चले जाओ, फिर शाम को आओ फिर टीवी देखो, बच्चों के साथ टाइम पढ़ो, सुबह 5-10 मिनट भगवत वो 5-10 मिनट हम पूजा आरती जो करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो भगवान से सुबह सुबह हम डिमांड कर जाते हैं, भगवान प्लीज़ सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आए, कष्ट भी मिटे, आपकी जय हो। तो ये वाली प्रेयर जरूर कर जाते हैं आप भगवान को, और शाम को भी दिया दिखा देते हैं, भगवान सुख संपत्ति प्लीज डील। तो आगे देखते हैं। जनक सीता जी के पिता थे और भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत का एक परगना है, के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता। तो राजा भी थे, भगवान के परम भक्त भी थे, भगवान राम के ससुर भी थे, सीता महारानी के पिता भी थे, नियत कर्म कर रहे थे, राजा वाली ड्यूटी भी पूरी कर रहे थे। राजा के पास कम काम होता होगा या ज़्यादा काम होता होगा? एक्सट्रीम ज़्यादा। आज के राजा का मतलब प्राइम मिनिस्टर। अब मोदी हो या राहुल गांधी, मैं वो नाम की बात नहीं कर रहा, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, उसका डेली रूटीन देख लिया करो, 18 घंटे काम कर रहा होता है, कोई भी हो, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे वो बिल क्लिंटन हो, दुनिया का कोई भी हो, उसके बाद इतना लोड होता है। इतनी बड़ी कंट्री, कितने करोड़ है? 140 करोड़। 40 लोग इकट्ठे नहीं रह पाते। 140 करोड़ों के लिए काम करना तो बहुत मुश्किल काम है। वो 18 घंटे काम कैसे करते होंगे, और फिर उसके साथ भक्ति भी कर लेते होंगे। और बड़े बड़े, अगर आप थोड़ी बुक्स पढ़ने का शौक है तो जैसे एलन मस्क, नाम सुना होगा, ये बिल गेट्स, ये सब लोग रात के 10 बजे सो जाते हैं, जरूर सो जाते हैं 10 बजे। हम लोग नहीं सोते, वो सोते हैं। उन्होंने हमारे हाथ में सब कुछ दे दिया और खुद वो आराम से सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? उन्होंने कहते दुनिया को खेलने दो। अपनी नियत कर्म वो अच्छा करते हैं, इसलिए वो आगे निकल गए। और वो सुबह टाइम से उठते हैं, 4-5 बजे उठते हैं। आप उनकी बायोग्राफी पढ़ो, जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। तो
उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं है ना, हमारे से तो करोड़ों गुना ऊपर है, बट फिर भी वो फॉलो करते हैं। अतः उन्हें अपनी प्रजा को ये शिक्षा देनी है कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि सत्प्रासद असफल हो जाते हैं तो स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। आज देश का कोई भी प्रेसिडेंट हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो जितना मर्जी शांति प्रिय हो, लेकिन पाकिस्तान अटैक करेगा तो उसका रिबेल तो करेगा कि नहीं करेगा? हाथ पे हाथ धर के थोड़ा बैठ रहेगा, मारते रहे भैया, रिबेल नहीं करेंगे हम। तो उन्होंने बोला कि युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई अशांति फैलाने की कोशिश करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करके दिखाया। भगवान चाहते तो पलक भी झपकाने की जरूरत नहीं थी, सारे लोग मरे पड़े थे। भगवान ने अपने विराट रूप में दिखा दिया था अर्जुन को कि सब मरे हुए हैं, तो तेरे को निमित्त मात बना रहा हूँ कि तेरे को क्रेडिट देना चाहता हूँ कि तूने मारे, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर दूँ। तो भगवान ये करना था, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा अच्छे से करना है, लेकिन भगवान सेंटर में होने चाहिए। हमारी ज़िंदगी में भगवान हर वक्त सेंटर में नहीं रह पाते, दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो जैसे प्रभु जी ने बोला वैसे ही करना होता है। अपना सुबह नियत कर्म करने का मतलब ये नहीं है कि सुबह 15-20 मिनट आधा घंटा हम 5 बजे करके पूरा दिन, जैसे आप गाड़ी में बैठे हो फ्री हो तो पाठ करो, आप भगवान का कीर्तन सुनो, भगवान की कथा सुनो। आप लंच कर रहे हो तो भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद खाओ। आपको कोई बैगर मिल रहा है, आपको उसको भीख देनी है, बोलो राम राम बोल भैया, वो राम राम बोलेगा, ये ले 5 रुपये 10 रुपये। आपने उससे भी बुलवाया, अपने से भी बुलवाया, उसको भिक्षा दे दी। सिर्फ अपना उद्धार थोड़ा करना, उसका भी तो उद्धार करना। एक बार जनक महाराज नरक में गए। नरक में जो भक्त होता है वो कैसे होता है सुनो। नरक में इतनी ज़्यादा पीड़ाई मिल रही थी तो उन्होंने बोला कि भाई इनको क्या, कह रहे इन्होंने बहुत पाप किए। यमराज जी कहते हैं बहुत पाप किए। कह रहे तो मतलब पाप करने की इतनी भयंकर सजा? कह रहे हाँ। कह रहे कोई हल नहीं था? कह रहे हाँ था हल। भगवान ने भगवद गीता में बोला कि जो मेरा नाम करता है मन मना ही भव, जो मेरा नाम हर वक्त चिंतन करता है उसके मैं पाप माफ़ कर देता हूँ। तो कह रहे इन्होंने भगवान का नाम ही नहीं लिया। कह रहे लेने की तो बात छोड़ो, इन्होंने सुना भी नहीं भगवान का नाम, सुनते भी नहीं थे। कह रहे अगर ये सुन लेते तो, कह रहे तो नरक में ना होते। कह रहे आज सुन ले। कह रहे आज कहाँ से सुनेंगे, अब तो नरक में आ गए। कह रहे आज भी सुन लेंगे तो भी नरक में बाय हो जाएंगे। उसी टाइम जनक महाराज पता क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नरक खाली, नरक खाली हो गया था उसी टाइम पूरा। यमराज जी कह रहे हैं ये क्या कर दिया? कह रहे आपने तो बोला था भगवान, तो खाली हो गया। कह रहे मैं इनकी इतनी पीड़ा कैसे देख सकता हूँ। तो जो एक भक्त होता है ना वो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है, अपने बारे में तो बाद में सोचेगा। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। रामानुजाचार्य का नाम सुना है? रामानुजाचार्य है ना, श्री संप्रदाय के। तो जब उनको दीक्षा लेनी थी ना तो वो गुरु के पास जाते थे। दीक्षा आसानी से नहीं मिलती। आजकल के तो लोग दे देते हैं दीक्षा, वैसे दीक्षा का रूल होता है, अपने रूल्स रेगुलेशन करो। ऐसे थोड़ा ना भैया मछली भी खा रहे हो, अंडा भी खा रहे हो, शराब भी पी रहे हो, दीक्षा भी ले लो, ऐसे थोड़ा मजाक थोड़ा चल रहा है। गुरु दीक्षा मिल रही है तो उनको दीक्षा, जबकि रामानुजाचार्य आचार्य थे। आचार्य मतलब बहुत टॉप मोस्ट, जैसे प्रभुपाद जी हैं, रामानुजाचार्य या चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया एक रोल मॉडल में। तो गुरु के पास जाते थे, उनके गुरु कहते नहीं अभी नहीं दूंगा, बाद में आना 6 महीने बाद और पक्के हो। जबकि वो पक्के क्या, वो तो पक्के ही थे। ऐसे करते करते कितनी बार उनको वापस भेज दिया, नहीं अभी नहीं, साल बाद आना, फिर 4 महीने बाद आना, दे ही नहीं रहे थे दीक्षा। फिर कई साल के बाद उन्होंने कहा ठीक है, फिर कान में गुरु मंत्र बताया। कह रहा लेकिन गुरु को प्रॉमिस करो कि ये गुरु मंत्र किसी को नहीं बताओगे। कह रहे मैं प्रॉमिस करता हूँ किसी को नहीं बताऊँगा, क्योंकि गुरु मंत्र नहीं बताना होता। और कह रहे इस चीज़ के प्रूफ तुम खुद ही हो, इतने साल तुमने इतनी अच्छी भक्ति कर रखी है, तुम आचार्य हो, तब भी तुम्हारे को गुरु मंत्र कितनी मुश्किल से मिला। तो आप सोच सकते हो गुरु मंत्र कितना कॉन्फिडेंशियल है और कितना इंपॉर्टेंट है। कोई गुरु मंत्र सुन लेना तो उसका उद्धार हो जाए, इसलिए हम देते ही नहीं, क्योंकि ये भगवान के धाम जाने वाला है। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरु जी, प्रॉमिस कर रहा हूँ नहीं दूंगा। और उस दिन उस मंदिर में मेला चल रहा था, हजारों लाखों लोग। जब गुरु मंत्र लिया और वो मंदिर की छत पे चढ़े गए, लाउड स्पीकर लिया और गुरु मंत्र बोल दिया जोर जोर से सबको। कह रहे इसका लाभ लो,
सारी दुनिया का उद्धार हो जाए। ओह, सब लोग तो नाचने लगे। ओ, उनके गुरु को पता चला, उन्होंने बुलाया, इतना गुस्से किया, कह रहे आप पता है आपका क्या हाल होने वाला है? कह रहा पता है, नरकों में जाऊंगा। कह रहे जब सब पता था तो क्यों किया? पता है नरक क्यों? कह रहे सब पता है, और कितने करोड़ जन्म नरक में जाना पड़ेगा वो भी पता है। कह रहे फिर क्यों किया? कह रहे मेरे अकेले में नरक में जाने में अगर लाखों लोगों का भला हो रहा है तो मैं अकेले नरक में चला जाता हूँ, लाखों लोगों का तो भला हो रहा है। तो भक्त ऐसे होते हैं। फिर गुरु ने उनको खड़ा किया और गले मिला, कह रहे तुम भैया प्योर डिवोटी हो, कोई नरक वर्क में नहीं जाओगे। तो जो भक्त होता है ना वो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है। इसीलिए हम लोग सड़कों पे जाके संकीर्तन निकालते हैं, प्रसाद बांटते हैं, ऐसी कथाएं अरेंज करते हैं। प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया कि ये प्रचार करो। ये प्रचार ही नहीं होएगा, जनक महाराज जी इसके रोल मॉडल हैं कि प्रचार ही नहीं होगा तो दूसरे लोगों को पता ही नहीं चलेगा, तो वो आगे कैसे बताएंगे? चेन टूट जाएगी। भाई जिससे मिलो उसको क्या बोलना है, क्या प्रचार का मतलब क्या होता है? भैया आप हरे कृष्णा, बस। कोई राम राम बोलता है तो वो भी प्रचार है। हरे कृष्णा बेसिकली भी, जैसे मैं पिछली क्लास में बताया था, कलयुग के अलग अलग मंत्र होते हैं। तो कलयुग का मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ऐसे द्वापर का अलग था, त्रेता का अलग था। तो कलयुग में अगर आप हरे कृष्णा बोलते हो तो इट्स वेरी 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 पावरफुल। जैसे आप बोलते हैं कृष्ण और विष्णु एक ही हैं, जिनको नहीं पता है एक ही। जैसे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, बच्चे हैं अभी? कितने बच्चे हैं? 2 हैं। कितने बड़े? एक। कितने बच्चे? कितना बड़ा है? 5 ईयर। वो आपको क्या बोलता है घर पे? आपको कैसे बुलाता है बच्चा आपको? मतलब आप जब आप घर पे जाते हो तो वो आपका बच्चा आपको क्या कह के बुलाता है? पापा बुलाएगा नेचुरली। आपकी वाइफ आपको क्या कह के बुलाती है? ए जी ओ जी, हाँ ए जी ओ जी, सुनो जी, यस, है ना। और आपका बॉस आपको कैसे बुलाता है? मनीष। आपके फ्रेंड्स आपको कैसे बुलाते हैं? मनीष, या अगर सपोज अगर निकनाम होगा तो निकनाम भी बुला सकते हैं। मैं आपको बुलाऊंगा प्रभु जी, क्योंकि हम सब यहाँ पे प्रभु जी बोलेंगे। एक बच्चा ये मिलेगा आपको तो आपको बोलेगा अंकल। आप तो एक ही हो, कैरेक्टर कितने सारे हो गए। तो ऐसे भगवान कृष्ण ने भी ऐसे कर रखा है। जब भगवान श्री कृष्ण घर पे होते हैं तो कृष्ण है, लेकिन वो जब ऑफिस है, दुनिया संभाल रहे होते हैं तो विष्णु है। और विष्णु के अंदर भी 3 कैटेगरीज होती हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और कांडोदक्षाय विष्णु। उनका अपना अलग अलग रोल है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जिनसे भगवान से प्रेम है, वो कृष्ण बुलाएंगे उनको। तो अगर आप 1000 बार विष्णु बोलो, जो है कृष्ण ऑफिस में, और 1 बार कृष्ण बोलो तो बराबर माना जाएगा। अब बोलो यार विष्णु तो कृष्ण है, वो ऑफिस में है, तो उनकी पोटेंसी कम होगी। आपका बॉस जितनी बार मर्जी मनीष मनीष बोल दे, लेकिन आपका बच्चा जब प्यार से पापा बोलता है तो वो करोड़ों मनीष से ऊपर हो जाता है। होता है कि नहीं होता? तो मनीष ही है, वही मनीष है, उसको नाम पापा बोल दिया तो वही कृष्ण है। 1000 बार विष्णु बोलो, 1 बार कृष्ण बोलो, बराबर। इसलिए सहस्र विष्णु नाम भी है। कई लोग 1000 बार विष्णु नाम रोज पढ़ते हैं, और अगर मैं या आप बोल दो कृष्ण, बराबर हो। तो 3 बार राम बोलो और 1 बार कृष्ण बोलो, बराबर हो जाता है। तो पोटेंसी उन्होंने अपने नाम में ज्यादा रख दी कलयुग के हिसाब से। इसीलिए हम राम भी बोल रहे हैं, कृष्ण भी बोल रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस राम को आप राम समझो, बढ़िया। इस राम को आप बलराम समझो, बढ़िया। इस राम को आप परशुराम समझो, बढ़िया। इस राम को कृष्ण समझोगे तो सबसे बढ़िया, क्योंकि राम और कृष्ण में कोई फर्क ही नहीं है। तो मेरे लिए कृष्ण भी राम है और राम भी कृष्ण है। तो कृष्ण कृष्ण है ना, टॉप मोस्ट है, तभी तो प्यार होगा। अब जैसे मैं अभी पिछली क्लास में बोल रहा था, मैं कहता था तो बाप तो एक ही होता है, माँ तो एक ही होती है। तो अगर हमारे आराध्य भगवान ही कंफ्यूज्ड हैं, मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ, इसकी पूजा करूँ, ये करूँ वो करूँ, तो हम भी कंफ्यूज रहेंगे। सही बात नहीं है। आराध्य भगवान का मतलब होता है जिसके प्रति पूरी तरह शरणागति हो जाती है।
जिनसे प्यार हो जाता है। जैसे वो एक फिल्मों में गाना आता था ना, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। तो जब अब भगवान का नाम आप बार बार लोगे तो प्यार हो जाएगा। अब वो एक से ही होगा ना, 4 से कैसे होगा? 4 से तो ब्लफ होता है, 4 से तो ब्लफ होता है, प्यार नहीं होता, वो इंद्रिय तृप्ति होती है। ये सो मैंने नहीं किया, शास्त्रों ने किया। हाँ, मैं किसी और को मतलब जो भी कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, मेरे करो। पेरेंट्स किसी और को कर रहे हैं। देखो भक्ति जो है, तो आई अंडरस्टैंड, भक्ति इज ए पर्सनल अफेयर। भक्ति में ना मेरे को देखना है मेरे को किससे प्यार करना है, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन एंड पर्सनल अफेयर। आपके घर वाले या कोई भी किसी से भी कर रहा है, आप समझो ना। अब मैं एक भौतिक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक लड़के का एक लड़की से प्यार हुआ, तो उस लड़के का लड़की से जेन्युइन प्यार है, तो उसी लड़के का होगा ना, उसके दोस्त का उस लड़की के साथ तो नहीं होगा ना, उसके माँ बाप का उस लड़की के साथ तो नहीं होगा, चाहे उनकी बहू बने या बेटी बने, वो वैसा वाला प्यार तो नहीं होगा ना। तो मेरा अट्रैक्शन है ना भगवान के प्रति, तो मेरा क्या अफेक्शन है, ये सोचना पड़ता है। दिस इज, और ये ऐसा नहीं होगा कि आज आप लेक्चर सुन के हो आप बोलो मैं राम राम ही, मेरे को राम में बड़ा अफेक्शन है, ऐसे नहीं होगा, मतलब ही नहीं होता। उसके लिए पता क्या करना पड़ता है, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ करना पड़ता है, यानी कि भगवान के लिए कुछ करना पड़ता है। तो बोलो क्या करना पड़ता है, कौन बताएगा क्या करना पड़ता है? तो ये तो बड़ा भारी वर्ड हो गया, आराम से हल्का वर्ड बताओ जो आप करो। पहली बात भगवान का नाम लेना पड़ता है। जैसे अभी हमने कीर्तन किया, आपको अच्छा लग रहा था ना कीर्तन, सबको अच्छा लग रहा था कीर्तन। तो जब भगवान का कीर्तन करते हैं तो भगवान का नाम ले रहे हैं मधुर वाणी से, सब मिल के ले रहे हैं, सब तालियां बजा रहे थे, तो क्या भगवान सुन नहीं रहे होंगे? तो उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो वो क्या ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे होंगे कि मेरा इतना प्यार से नाम ले रहे हैं? तो जब वो ब्लेसिंग देंगे तो हमारे को प्यार हो जाएगा। इट विल टेक टाइम। वो डिपेंड कर रहा है आपकी डिवोशन का लेवल क्या है, आप कितने सिंसियरली नाम को लेना चाहते हो। तो जब भी हम कीर्तन करते हैं तब तो नाम लिया जाता है, लेकिन जब हम घर पे नाम जप लेते हैं तब थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो थोड़ा बोर्डम हो जाता है। तो यही प्रयास करना है कि जब भी, जैसे प्रभु जी ने बोला गाड़ी में टाइम मिला, जब भी टाइम मिले आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। अब जैसे एक माता जी अभी भी गई हैं, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि प्रभु जी आजकल ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चलता है। मैंने कहा आजकल नहीं, हमेशा ही चलेगा, कभी कुछ सही नहीं होने वाला। कभी आप सब लोग देखो ऐसे नहीं है, बच्चों को छोड़ दो, कोई 20 साल 25 साल 30 40 50 60 साल के भी हैं, तो लाइफ में प्लस माइनस और रोज़ ही कुछ ना कुछ होता है। ऐसा हुआ ही नहीं है कि आप बढ़िया खाना खा के आ रहे हो, तो हो सकता है गाड़ी पंक्चर हो जाए, आपके पसीने छूट जाए, हो सकता है किसी का आके पेट खराब हो जाए किसी का, तो सब कुछ बढ़िया था 4 घंटे में, लग रहा है यार क्यों खाया। तो प्लस माइनस तो चलता ही रहेगा पूरी ज़िंदगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भगवान ये चाहते हैं उस प्लस माइनस में मुझे याद कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर विपरीत परिस्थिति में भी याद कर रहे हो भगवान को तो वो द बेस्ट है। अनुकूल में तो कर ही लेता है सब कोई। तो आगे करते हैं। आगे लिखा हुआ है भगवान कृष्ण तथा उसके भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्प्रयास असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर, उन्होंने तो बोला था ना 5 गांव दे दो बस। महाभारत युद्ध को टालने के लिए उन्होंने बोला राज्य नहीं चाहिए हमारे को, स्टेट नहीं चाहिए, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने बोला, क्या बोला था याद है किसी को? सुई की नोक के बराबर की जमीन भी नहीं दूंगा, 5 गांव की तो दूर के बाद। भगवान कृष्ण भिक्षा मांगने चले गए पांडवों, क्योंकि पांडव इतने अच्छे भक्त थे। तो ये नहीं बोला कि लड़ाई करना बोला, भगवान ने बोला भाई 10 बार पहले प्रयास करो, प्यार से काम हो जाए, अपना दा बेस्ट करो, जितना नीचे आ सकते हो आ जाओ, फिर भी ना हो नियत कर्म करो। अतः ऐसे सधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था।
यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता है। कृष्ण भावना भावित मृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण करें। अनुसरण का मतलब होता है उनको देख देख के रोल मॉडल बने वो, और ताकि वो लोग उनको देखें, कॉपी नहीं करना। और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। टाइम कितना रह गया? तो अभी हमारा एक श्लोक और हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं, अभी आधा घंटा है, आगे चल रहा है, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ठीक है, चलते हैं। आपने कहा कि भगवान कृष्ण का नाम 3 बार राम का नाम ले लो, 1 बार भगवान कृष्ण का नाम ले लो, बराबर होता है। और 1000 विष्णु बोलो तो भी एक कृष्ण के बराबर है। तो राम के रूप में भगवान कृष्ण ने ही तो जन्म दिया था, और जब भगवान कृष्ण के रूप में आए तो थे ही नहीं। नहीं, ऐसे तो फिर आप बोल सकते हो भगवान राम, आप बताओ कौन से युग में आए थे? आप बताओ भगवान राम कौन से युग में आए थे? सिर्फ आप बताओ। सतयुग में आए थे, त्रेता युग में आए थे? त्रेता में आए थे। तो त्रेता से पहले तो सतयुग था। तो आप ये कह रहे हो कि भगवान राम त्रेता में आए, तो राम के बाद आए द्वापर युग, तो फिर राम जी बने कृष्ण। तो फिर उससे पहले, त्रेता से पहले तो सतयुग था, उसमें सिर्फ आप ही बताओ उसमें कौन थे? हाँ, यही तो मैं कह रहा था आज की क्लास में भी कि इसके लिए हमारे को शास्त्र पढ़ने ही पड़ेंगे। उससे पहले आए थे नरसिंह भगवान, उनको तो हम नाम भी नहीं लेते, वो तो यहाँ के नरसिंह आरती सुनी पहली बार। तो अदरवाइज तो फिर ये क्वेश्चन होना चाहिए, प्रभु जी फिर राम का नाम से पहले तो नरसिंह भगवान का आता है ना, तो हम तो नरसिंह भगवान के ले रहे हैं शुरू से। आप समझ रहे हो ना प्रभु जी? तो वो लॉजिक नहीं है। हर युग में भगवान सेम पोटेंसी के साथ रखते हैं, लेकिन पावर अपनी पोटेंसी में ज़्यादा कर देते हैं, किसी में कम कर देते हैं। ऐसे तो बुद्ध भी भगवान ही थे, उन्होंने अपनी पोटेंसी कम कर दी वहाँ पर। नरसिंह भगवान ने अपनी पोटेंसी रखी कि भक्तों की भक्ति में कोई अड़चन आ रही होगी, भक्तों की भक्ति में। प्रभु जी थोड़ा आगे आ जाओ प्लीज़, आगे आगे आ जाओ। हाँ माता जी अब इधर बैठ सकते। तो नरसिंह भगवान का प्रकट है, बस पता क्या हुआ था, वो शायद स्टोरी पता होगी प्रहलाद महाराज जी को। प्रहलाद महाराज जी हिरण्यकशिपु के बेटे थे। हिरण्यकशिपु असुर थे। हिरण्यकशिपु ने बोला कि तू 24 घंटे, 5 साल के थे, 24 घंटे भगवान 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 कहाँ पे है? कह रहे भगवान तो हर जगह पे है। कह रहे इस खंबे में है भगवान? कह रहे हैं इस खंबे में है। और हिरण्यकशिपु ने खंबा तोड़ दिया। हिरण्यकशिपु वो था कि वो अपनी सिर्फ ये त्रिपुटी हिलाता था ना, तो पूरे सारे देवी देवता हिल के नीचे आ जाते थे, वो इतना पावरफुल था। सारे देवी देवता झाड़ू मारते थे। रावण के दरबार में भी ये शनि राहु उल्टा लटका के लटका रखा था, रावण ने उल्टा लटका रखा था। हम लोग शनि शनि राहु राहु करते रहते हैं। अरे जिसने भगवान को पकड़ लिया उनके लिए शनि राहु क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। चवन्नी, मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ, आप तो शायद डरोगे, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। जो उल्टा लटका हुआ रावण के, असुर के, और जिसने राम को पकड़ लिया तो राम ने रावण को मारा, रावण ने शनि को ऐसे उल्टा लटका रखा है, झाड़ू मारते थे, और हम शनि शनि से डर रहे हैं। अरे जब टॉप पोस्ट को पकड़ लिया तो फिर क्या? जब मोदी को पकड़ लिया, पीएम को पकड़ लिया, वो द्रौपदी मुर्मू को पकड़ लिया, बाई जॉर्डन, क्या नाम, बाई जॉर्डन, जो उसको पकड़ लिया, फिर हम क्या एसएचओ पुलिस वाले से डरेंगे? कहेंगे यार तेरे बाप के बाप को मैंने पकड़ रखा है, हो गया, सॉरी गलती होगी। तो हिरण्यकशिपु ने बोला इस खंबे में है? कह रहा हाँ इस खंबे में है। उसने मारा, भगवान निकल गए नरसिंह भगवान। उससे पहले वो पैदा थोड़ा ना हुए थे। तो भगवद गीता का 4.9 श्लोक आता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान के जन्म कर्म को कोई नहीं समझ पाता। अब भगवान कहाँ से आ गए उस खंबे के अंदर? कौन समझ पाए? हाँ डिफरेंट नेम से है, लेकिन नाम एक ही है, लेकिन पोटेंसी अपनी कम ज़्यादा करते हैं उस युग के हिसाब से। युग के हिसाब से एक ही है, तभी तो मैंने बोला राम और कृष्ण एक ही हैं। नरसिंह भगवान भी कृष्ण ही है, लेकिन पोटेंसी है। तो हमने देखना 24 अवतारों में सबसे ज़्यादा पोटेंसी किसकी है? राम, देन उसके ऊपर कृष्ण की हो जाती है। इसलिए हम राम और कृष्ण को सर्वोपरि मान के हरे कृष्णा मंत्र बोल देते हैं। हाँ ठीक है, सबको समझ में आया? वो तो हरिश्चंद्र जी तो अलग थे माता जी, वो तो कलयुग के अंदर, मतलब उस टाइम पे थे, राजा थे, वो तो नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। वो तो फिर श्रवण कुमार हुए, फिर वो तो ठीक है। अगला श्लोक करते हैं।
अगला श्लोक तो सिर्फ मैं पढ़ लेता हूँ, आप सिर्फ सुन लेना। यत् यत् आचरति श्रेष्ठा तत् तत् एव इतर जनः सा यत् प्रणाम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने उस टाइम पे अशोका था, कलिंगा वॉर, पूरी दुनिया को मार रहा था, तो उस टाइम पे भगवान का प्राकट्य हुआ। किसका? लॉर्ड बुद्धा का। तो उस टाइम की प्रायोरिटी क्या थी कि सिर्फ मार काट को रुकाया जाए, दैट्स इट। अहिंसो परम धर्मा। उन्होंने, भगवान ने तब कोई और फिलॉसफी समझाई नहीं, उन्होंने बोला ये 24 घंटे तो मारते रहते हैं, ये अभी धर्म के बारे में नहीं समझ, इनकी मार काट रुकवा दूँ, यही बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने क्या कर दिया, अहिंसो परम धर्मा। अशोका का भी ब्रेन वॉश कर दिया और उसको भी, उसके दोनों बच्चों को प्रचार कार्य में भेज दिया कि भैया हाँ अहिंसा का प्रचार करो। राम जी आए तो उन्होंने बताया कि ये ग्रस्त किस तरह से हो सकता है। कृष्ण जी फिर लास्ट में आए तो उन्होंने बताया भैया ग्रस्त को डिप्लोमेटिक भी बनना पड़ेगा, युद्ध भी करना पड़ेगा, ग्रस्त का भी पालन करना पड़ेगा, किससे कैसे बात करनी है, कितना स्मार्ट होना है, बेवकूफ़ भी नहीं बनना, क्योंकि कलयुग आने वाला था। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें सिखा दी है। इसीलिए कृष्ण को 64 कला संपूर्ण बोल देते हैं। तो जो वो कह रहे हैं कि जो महापुरुष होता है ना, वो अपना आचरण ऐसे कर देता है कि ताकि लोगों को पता चल जाए कैसे करना है। जैसे बुद्ध आए, उन्होंने अहिंसा परम धर्म का आचरण किया तो सब लोग बोले हाँ अहिंसा नहीं करनी, अहिंसा नहीं करनी, अहिंसा नहीं करनी, तो उन्होंने उसी को पकड़ लिया। अब जो महापुरुष आएगा वो, जैसे चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु महापुरुष के रूप में आए थे तो वो भगवान, उन्होंने क्या बोला कि आप जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। उन्होंने बोला जहाँ देखो क्या बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उन्होंने ये बोला तो लोग फिर उनको फॉलो करने लग गए। अब इसका उन लोगों ने फ़ायदा उठाया जो गड़बड़ लोग हैं। उन्होंने बोला ठीक है, महापुरुषों का अगर अनुसरण लोग करते हैं तो भैया मैं भी फैलाता हूँ कि नॉन वेज खाना चाहिए, नहीं तो मुर्गे सड़क पे घूमेंगे, पॉपुलेशन उनकी बढ़ जाएगी, हमारे को रहने की जगह नहीं मिलेगी, खाओ। तो लोगों ने हाँ देखा महापुरुष है। महापुरुष का मतलब वो डिप्लोमेटिक लीडर। आजकल लोग उनको भी, आजकल हमारे रोल मॉडल क्या है, एक्टर एक्ट्रेस, नेता लोग। कई नेता अच्छे होते हैं लेकिन ज़्यादातर को पता है, आपको 24 घंटे न्यूज़ पर लड़ाई हो रही होती है और हम लोग पैर छुरे होते हैं। चलो रिस्पेक्ट और हो गया, नो प्रॉब्लम, बट हम उनको अनुसरण नहीं करना चाहिए। अनुसरण किसको करना चाहिए? जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमारे को अपनी शास्त्रों के बारे में पता नहीं, हम सुबह सुबह 1 घंटा न्यूज़पेपर चाट लेते हैं। शास्त्रों में इतने, आप लोगों की नई नई क्लास में बोल भी नहीं पाऊंगा कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं जो मुझे पता है, अभी मैं बोल भी सकता हूँ, कि अगर आपने उनको सुन लिया ना तो हो सकता है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है काम वासना, वो आप सोच थूकने लग जाओ कि यार ये क्या है, क्या है, क्या इस शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन हम पढ़े क्यों? शास्त्र मेरे लिए थोड़ा है, मैं तो पढ़ लिख गया, मेरे पास और भी काम है। और जब तक नहीं पढ़ा लिखा था तब तक वो पढ़ाई करनी पड़ी थी, नौकरी लेनी है। जब नौकरी ले ली तो भैया नौकरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद बूढ़े हो जाएंगे, आंखें साथ नहीं देंगी, तो पढ़ेंगे क्या? बोलते हैं पता नहीं मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। हाँ, फिर अब चलेंगे तीर्थ यात्रा में। कब क्या होएगा भाई? बोलो गोवर्धन जी की परिक्रमा करनी है, अब कहाँ से चल लोगे भैया? यही तो एज है जिसमें करनी चाहिए थी, अभी टाइम नहीं है हमारे पास, कब करेंगे? तात्पर्य, सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसा नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। सपोज आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, ठीक है, हालांकि मैं तो पोस्टमैन हूँ, जो मेरे को सिखाया जाता है मैं आके बोल देता हूँ। और मैं यहाँ से लेक्चर लेके निकला, मैंने पहनी जीन्स, फिर टी शर्ट और मुंह में लगा ली सिगरेट और बाहर जा रहा हूँ। ये लेक्चर के टाइम पे तो लेक्चर था, बाहर तो मेरी ज़िंदगी है, पर्सनल में जो मर्जी करो। तो आप बोलोगे यार ये क्या है? आप मेरा अनुसरण थोड़ा करोगे,
जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ, जो प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी है, जो मैं उसको एज इट इज़ देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उसको कर भी नहीं सकते। तो अपने आचरण से दिखाना होता है। आचरण का मतलब होता है अपने बिहेवियर से सिखाना होता है, ना कि सिर्फ बोल के सिखाना होता है कि भाई ये करना चाहिए। पहले खुद तो करो भैया। मैं तो घर जाके नॉनवेज खाता हूँ, आपको तो नहीं पता, मैं दिल्ली से आता हूँ। तो आप बोलोगे यार, एक दिन कोई गलती से घर में आ गया, बच्चे ने बोला पापा आप आज खाओगे नॉन चिकन खाओगे? आपने बोला ये प्रभु जी तो यार प्रवचन देते हैं। तो आप उस चीज़ को कभी ज़िंदगी में पालन नहीं कर पाओगे। जबकि हमारे घरों में आओगे तो हमारे घर में तो प्याज लहसुन भी आता ही नहीं है, खाने की तो बड़ी दूर की बात है। अगर हम शादी ब्याह में भी जाएंगे तो भैया दूर से नमस्ते कर देंगे। तो पहले आचरण दिखाना है। मेरे इंस्टीट्यूट में, अगर मेरे इंस्टीट्यूट में कोई भी बच्चा आता है पढ़ने के लिए मेरे से, तो हम उसको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलते ही नहीं है, हरे कृष्णा बोलते हैं। चाहे वो पलट के कुछ भी बोल दे, लेकिन हम तो हरे कृष्णा ही बोलेंगे, ये राम राम ही बोलेंगे। कभी आपने सिखों को देखा, 5 स्टार में हो, कॉर्पोरेट में हो, कहीं पे भी हो, वो सत श्री अकाल ही बोलते हैं। हम लोग नहीं बोलते राम राम, शर्म आती है। वो जहाँ मिलेंगे सत श्री अकाल बोलेंगे, चाहे खरबपति पार्टी में क्यों ना हो, लेकिन हम तो बोलेंगे हेलो हाउ आर यू सर। तो हम अपने आचरण से ही नहीं दिखाना चाहते। तो अगर हम पूरा दिन हर किसी को जब भी वो मिलेगा हरे कृष्णा या राम राम करेंगे, तो आचरण में आएगी या नहीं आएगी? तो कृष्ण सेंटर में होंगे कि नहीं होंगे? पूरा दिन होंगे। मैं सुबह जब उठ के जाता हूँ, नहा के आता हूँ, मेरी वाइफ 15 मिनट में उठ के बाहर आती है, तो मेरी वाइफ आती है तो मैं बोलता हूँ हरे कृष्णा, तो वो भी हरे कृष्णा बोलती है। बच्चे उठ के जब सुबह पहले मिलते हैं, मैं बोलता हूँ हरे कृष्णा, वो भी हरे कृष्णा बोलते हैं। मम्मी मिलती है तो मैं वो हरे कृष्णा, वो भी मिलती है। शाम को जब ऑफिस से जाता हूँ तो हरे कृष्णा। फिर आरती कर रहे होते हैं, कोई ना कोई भोग लगा रहा होता है। कभी ना कभी किसी की घंटी बज रही है, चलो कोई आरती चल रही है, कोई भोग चल रहा है, कोई लेक्चर चल रहा है, कोई कथा चल रही है। पूरा दिन हमारे घर में यही चल रहा होता है। बच्चों ने जब पढ़ना होता है अपना रूम बंद करके पढ़ भी रहे होते हैं। हमारे घर में 4 रूम हैं, तो 4 रूम के अंदर कम से कम भी बताऊं तो 20 से ज़्यादा पेंटिंग्स लगी हैं भगवान की। एक कमरे में कम से कम 5, 6, 7 तो होती हैं। कोई दीवार, कोई कोना कुछ है ही नहीं, इतनी सुंदर सुंदर। कहाँ छोड़ोगे आप? कहाँ कृष्ण सेंटर में नहीं आएंगे? तो कोई मुश्किल काम नहीं है। सर मैंने कहीं सुना कि जितने भी देवी देवता हैं उनको एक डेडिकेटेड एरिया पे ही उनको एस्टेब्लिश करना चाहिए, ना कि हर एक रूम में। आपने अपने बेडरूम में भी लगा। कहाँ पे आपने ना, जैसे कल मैं एक वीडियो देख रहा था, हमारे इस्कॉन वाले ने बनाया है, तो वो कह रहे थे ऐसी वीडियो वालों को पकड़ना चाहिए जो बोलते हैं कृष्ण कहते हैं। खैर कहाँ कहते हैं? तो आपने सुना कहाँ लिखा? वो किसी ने भी बोल दिया ना, यूट्यूबर ने बोल दिया। आपने यूट्यूब, अब यूट्यूबर तो अनपढ़ था, गंवार था, इरिलीजियस था, नास्तिक था, उसकी बात को हम क्यों माने? शास्त्र में बताओ ना कहाँ लिखा हुआ है। वो हमारे पास प्रूफ नहीं है, इसलिए बोलते हैं हर चीज़ का मर्म है शास्त्र। सिवाय टॉयलेट को छोड़कर कहीं भी लगा सकते हो, सिवाय टॉयलेट को छोड़कर। और टॉयलेट में भी भगवान का नाम ले सकते हो ऊंचा ऊंचा, ये नहीं मन में, ऊंचा ऊंचा। मेरा टॉयलेट में अगर मैं सुबह 4, पौने 4 बजे उठ के टॉयलेट में, मेरा फ़ोन अंदर जाना ही जाना है। उस पर कथा चलेगी ही चलेगी जब तक मैं 20 मिनट हूँ, या कीर्तन चलेगा ही चलेगा। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि मेरे साथ टॉयलेट में फ़ोन ना जाए। और मेरा छोड़ो, जितने सीनियर्स हैं सबका से यही हाल है। मृत्यु तो टॉयलेट सीट पे भी आ सकती है भाई। अंतकाल में भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो हम तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। मृत्यु तो कहीं, तो एक क्षण भी वेस्ट क्यों करें? टॉयलेट की सीट पर भी बैठ के माइंड तो कहीं जा रहा होगा ना, जाने क्यों दें? कथा में ध्यान लगा देते हैं, कीर्तन में ध्यान लगा देते हैं। मुफ्त का टाइम था, उसको यूटिलाइज कर दिया। ऐसे मुफ्त का टाइम दिन में हजारों बार मिलता है। लिफ्ट में जाते हैं ना, लिफ्ट में तो कितना टाइम लगता है बड़े बड़े ऑफिस के अंदर, तो हम श्लोक की बुक रख लेते हैं जेब में। अरे यार लिफ्ट में 2 मिनट श्लोक ही पढ़ लिए, सर धनवान पढ़ते हैं, चल भैया, वो टाइम बच जाता है। हमारे बैग्स देखोगे, मेरे दूसरे बैग देखो, मैं तो बैग यहाँ रखा नहीं, उधर है। माला के साथ साथ एक काउंटर भी होता है, जहाँ पे माला नहीं कैरी कर सकता वहाँ पे काउंटर भी है। हालांकि माला तो सुबह कर ली 7 बजे, एक्स्ट्रा कि मैं आपसे बात करूँ, आपका फ़ोन आ गया 5 मिनट, मैं बिजी हूँ, 5 मिनट वेट कर लो, मैं हरे कृष्णा करो, तो मन में चल रहा है। तो कुछ विकल्प छोड़ने का प्रयास नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई शुद्ध बुद्ध नहीं हूँ भैया। जैसे हम सब साधक हैं, हम सब प्रैक्टिशनर हैं, हम सब भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। गिरेंगे, पक्की बात है गिरेंगे, दोबारा उठ जाओ, फिर दोबारा गिरेंगे, फिर दोबारा उठ जाओ, फिर दोबारा गिरेंगे, फिर दोबारा उठ जाओ,
फिर दोबारा गिरेंगे, फिर दोबारा उठ गए। तो भगवान हमारे प्रयास से खुश नहीं होंगे क्या कि 10 बार गिर गया, 100 बार गिर गया, लाख बार गिर गया, दोबारा खड़ा होता है, छोड़ नहीं रहा मेरे को। तो भगवान कहेंगे भैया आ जाओ, ऊपर ही आ जा। यही करना है और क्या करना है। आपको क्या लगता है कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो हम अब कभी हम माया के तंगल में नहीं फंसते क्या? हजारों, आजकल तो माया हर क्षण है सामने, कभी पैसे के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी खाने के रूप में, पता नहीं, कभी कपड़े के रूप में, कभी मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ये वो करोड़ों चीज़ें हैं। बच जाओगे? बच ही नहीं सकते। लेकिन जैसे हम माया के अंदर जाते हैं ना तो दिमाग में आता है अरे ये क्या कर रहा है, बाहर हरे कृष्णा, वापिस ले व्हाट इट, प्रैक्टिस है। बस 5-7 मिनट शायद रह गए होंगे, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो आगे लिखा हुआ है कि यदि कोई नेता धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। उसको खुद तो पता होना चाहिए शास्त्र, खुद तो फिलॉसफी समझ के आए वो, तभी तो वो बोलेगा, नहीं तो क्या बोलेगा। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। तो मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ ना, जो शास्त्र में लिखा है भैया वो मानना है। एक फॉर्मूला बताता हूँ, उस फॉर्मूले को बोलते हैं GSS। कभी भी किसी को चेक करना हो तो ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का नाम है गुरु, साधु, शास्त्र। अब कोई गुरु भी है, उसको चेक कैसे करोगे सही है गलत है? और गुरु तो चलो है, फिर उसके नीचे वाला बंदा जो आपको आके उपदेश दे रहा है उसको चेक कैसे करोगे? तो वो देखो वो जो बोल रहा है वो शास्त्र में लिखा हुआ है, लास्ट शास्त्र में चेक करो। अगर साधु वो बोल रहा है शास्त्र की बात तो साधु है, और फिर वो गुरु भी है। और वो चाहे जितना मर्जी बड़ा गुरु और शास्त्र में नहीं लिखा तो भैया बेकार है, क्योंकि वो कहीं प्रूफ ही नहीं है। मैं अपने हर लेक्चर में ज़्यादातर ये बोलता हूँ, रामायण, भगवद गीता, भागवतम, ये कोई आज के ग्रंथ तो नहीं है ना। भगवद गीता करोड़ों साल से चलता आ रहा है। कोई बोले यार 5000 साल पहले तो द्वापर युग खत्म हुआ, तो द्वापर युग तो ब्रह्मा जी की लाइफ में दिन में 1-2 बार आ जाता है ऐसे कितने ब्रह्मा जी गए और कितने ब्रह्मा जी आए, तो करोड़ों सालों से चल रहा है। तो हम क्या होते हैं, रामायण, भगवद गीता, भागवतम की शरण छोड़ के नई नई चीज़ें पकड़ लेते हैं कि यूट्यूब पे ये लिखा हुआ है, ये नया शास्त्र आया। किसने लिखा? PhD वाले ने लिखा। अब PhD का शास्त्र से क्या लेना देना? PhD का शास्त्र से क्या लेना देना? उसमें भक्ति कहाँ से आ गई? वो कह रहे नहीं उसने भक्ति में PhD करी है। भक्ति में PhD का मतलब क्या हुआ? PhD तो एक टॉपिक के ऊपर होती है। लोग आसमान के ऊपर PhD कर रखी है, पता है आप लोगों को? तो सॉरी, जब तक हम शास्त्रों की शरण नहीं लेंगे ना, रामायण, भगवद गीता और भागवतम, तब हमारे को तब पता चलेगा कि सामने वाला स्पीकर शास्त्रों को बोल रहा है। अदरवाइज तो मैं कुछ भी बोलूँ आपको क्या पता। जैसे अभी प्रभु जी ने बोला कि मैंने सुना है, तो हमने 1 सेकंड में आंसर दिया कहाँ लिखा। आप मेरे को बोल दो ना कि प्रभु जी जो आपने बोला वो कहाँ लिखा, तो मैं तो श्लोक ही से नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बाहर से बोल ही ना, किताब ही खुली हुई है। पढ़े ना, हम तो किताब खोल के बोल देते हैं। भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम की किताब, उसमें हम अपनी केस स्टडी डालते हैं समझाने के लिए, प्रैक्टिकल अप्रोच, कि मेरे घर में ऐसी फोटोज लगी हुई हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच। तो अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करें। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। यानी कि जो नेता है, जो लीडर है, वो शास्त्रों के आधार पर कुछ भी बोल सकता है। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। अब उन्नति चाहता है,
यहाँ पे कौन सी उन्नति की बात हो रही है? आध्यात्मिक उन्नति की बात हो रही है। तो उसके जो शिक्षक हैं, महाशिक्षक में, वो जो नियम पालन कर रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पद को प्रगति का यही साधन है। आध्यात्मिक पद पर चाहे राजा हो या राजा का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक हो, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। पिता भी ये तो नेता है ना अपने बेटे के लिए, रोल मॉडल हो गया। अब डिपेंड करता है फिर भी इसके ऊपर भी काफ़ी कुछ ध्यान से सुनना है। कहानी सुना रहा हूँ आपको। एक बार एक IAS का इंटरव्यू लिया जाता है, वो कह रहे भाई आप अपने बारे में बताओ, आप IAS हो। तो वो बताता है भाई ऐसे ऐसे मैंने पढ़ाई करी, मेरा बचपन बड़े मुश्किल टाइम पे गया, ये वो लाइक दिस। वो कुछ चीज़ें बताता नहीं है, बस बताता है मुश्किल टाइम पे गया था, घर का स्थिति ख़राब थी, ये वो। तो जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो सोचता है कि इसके रूट पे जाता हूँ, इसके घर पे जाता हूँ, उसके किसी देखता हूँ इसके बचपन में क्या रहा। तो वो उसके भाई का इंटरव्यू लेता है, और उसका भाई जो था ना वो शराबी था, ख़तरनाक शराबी, जुआरी, मतलब जो ऐसे ऐप महाघटिया इंसान। उसका इंटरव्यू लेते ही घबराते हैं, पर लेते हैं। भाई आप बताओ अपने बारे में कि आप शराबी कैसे बने, जुआरी कैसे बने। कह रहे हमारी घर की परिस्थिति ना बहुत ख़राब थी। उसके भाई ने भी यही कहा। कह रहे क्या ख़राब थी? कह रहे हम तो जिस दिन से पैदा हुए हमने अपने बाप को देखा शराब पीता है, मारते हैं, वाइफ को भी मारता है, हमारे को भी मारता है, जुआ खेल देता है, जो पैसे कमाता है जुआ खेलता है, चोरी करके लाता है, सारे ऐप करता है, सारे ऐप करता है। तो मैं तो बचपन से ये देख रहा था, तो मेरे को तो यही बनना था। कहते हैं अच्छा। वापस IAS वाले के पास जाता है। कह रहे हमने आपके घर पे भी इंटरव्यू लिया, तो आपके फादर ऐसे ऐसे थे, तो आपके भाई ने बोला कि भाई उनको बचपन से देख रहे थे, तो आपने भी ऐसे ही देखा था? कह रहे हाँ, मैं बचपन से ही देख रहा था, मार कुटाई, शराब, जुआ, चोरी चकारी। तो कह रहे फिर आप IAS कैसे बन गए? तो कह रहे मैं वहाँ से सीख ले रहा था ना कि ये देखो, ये जुआ करने से कितना नुकसान होता है, शराब पीने से कितना नुकसान है, ये नहीं करना मेरे को लाइफ में, ये नहीं करना मुझे लाइफ में, मुझे कुछ अच्छा करना है। मेरे भाई ने बोला यही देख रहा है। तो ये व्यक्तिगत के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप सामने वाले को देखते कैसे हो। तो हर चीज़ ये नहीं होती। शास्त्र एक चीज़ बता रहा है, पढ़ने वाला कहता है देखो यही तो लिखा हुआ है, दूसरा कह रहा है ये कहाँ लिखा है, कह रहा है यही लिखा है। एक बार एक बंदे ने बोला, नमाज़ पढ़ने जाता था वो, रोज़ 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं ना। जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसका बच्चा ना जाता ही नहीं है वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए। कहाँ पे? मस्जिद में। तो वहाँ के मौलवी वगैरह वो कहते हैं तो इसका पिता तो बड़ा अच्छा भक्त था, वो उसके घर जाते हैं उसको समझाने के लिए, बेटा एक बार तो आ जाएगा नमाज़ पढ़ने के लिए, तो आता ही नहीं है। कह रहे मैंने ना, कह रहे कुरान पढ़ लिया कर। कहते मैं कुरान पढ़ी है, उसमें लिखा है ये मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, कुरान नहीं पढ़नी चाहिए। कह रहे हैं यार हम तो मौलवी हैं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। कह रहा दिखा देता हूँ। वो कुरान खोलता है, कह रहे हैं लिखा होता है लास्ट लाइन में, उल्टी चलती है ना उर्दू। कह रहे हैं कुरान नहीं पढ़नी चाहिए, लिखी होती है लास्ट लाइन, कुरान नहीं पढ़नी चाहिए। तो मौलवी परेशान, यार ये कहाँ से लिखा है। वो पेज पलटाता है, आगे लिखा होता है बिना हाथ पाँव धोए। अब वो वहीं पे देख के ख़त्म कर रहा है। A little knowledge is a dangerous thing। तो कौन क्या समझना चाहता है, इसीलिए उसके ऊपर भी एक मेंटर की ज़रूरत होती है जो उसको मार्गदर्शन देगा। भाई इसका मतलब ये है, तू क्या सोच रहा है। हम अपनी मनोकल्पना से उसको कुछ भी सोच लेते हैं कि भगवान ने तो यही कहा है, अरे क्या कहा है। और पहला वाला श्लोक है ना, नियत कर्म, कहेगा नियत कर्म करता हो तो नियत कर्म का मतलब क्या होता है? टॉयलेट जाओ, नहाने जाओ, यही तो नियत कर्म होता है। और क्या, यही तो लिखा है, यही कर रहा हूँ, तो इसमें कोई पाप नहीं है। हम बता रहे हैं अकर्म करना पड़ेगा भगवान को, वो नियत कर्म की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं होता कि जो शास्त्र होते हैं वो अपने आप रिवील करते हैं, उनके लिए कोई गुरु, कोई साधु की ज़रूरत पड़ती है, कोई शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है। मैं हर क्लास में बोलता हूँ, नर्सरी क्लास को छोड़ो, प्ले स्कूल में डाल देते हैं बच्चों को, 2 साल के बच्चों को, कि जा टीचर सिखाएगी उठना बैठना। शास्त्र को समझने के लिए कोई टीचर नहीं है, हम खुद ही पढ़े लिखे हैं भैया बचपन से, बहुत सुना है हमने। यूट्यूब आस्था संस्कार में हज़ारों चैनल्स हैं जो सब सिखा रहे हैं। अरे क्या सिखा रहे हैं पता ही नहीं है, कौन प्रमाणिक है कौन प्रमाणिक नहीं है पता ही नहीं है। क्या वो पैसे के लिए शास्त्र सिखा रहा है या वो भगवान को फैलाने के लिए शास्त्र सिखा रहा है? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो ठीक है, नहीं तो ये हमारा ख़त्म हो गया था ना, लास्ट लाइन हो गया था ना।
हनुमान चालीसा, वही है चालीसा, शिव चालीसा। ठीक है। तो फिर ऐसे करते हो ना, हरे कृष्ण में देखो अभी ना स्टार्टिंग फेज है, तो स्टार्टिंग फेज में तो अभी आप जो कर रहे हो करो। योग का मतलब ये होता है कि भगवान को जोड़ना। जो आप कर रहे हो, शिव चालीसा पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, लेकिन कृष्ण को अंदर ऐड कर लो। आप एक माला स्टार्ट कर दो बस, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जो आप कर रहे हो करते रहो। इसमें 1 माला, 2 माला, 5 माला, 10 माला, 16 माला, जितनी करनी है वो ऐड कर दो। और ऐड कर सकते हो तो भगवान को भोग लगा के खाना शुरू कर दो। अभी फ़िलहाल इतना ही पकड़ो। संडे के संडे क्लास में ज़रूर आओ, क्योंकि यहीं से धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। अगर 1 हफ्ते आए, 2 हफ्ते नहीं आए, 2 हफ्ते आए, 1 हफ्ते नहीं आए, तो कुछ नहीं होने वाला। वो टाइम पास हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला, वो टाइम पास। हाँ मजबूरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण राम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की जय, शीला प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो अगले संडे भी आप सब लोग प्लीज़ आना। और आप माला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। थैंक यू सो मच। शीला प्रभुपाद की जय। हाथ